Hello guys, myself Chirag. In this video we will talk about MOS inverter with active and passive load. This is a part 1, and in part 2 we will talk about CMOS, complementary MOSFET. And before seeing this video, please see my last video. In last video I have covered the basics of MOSFET. You can see the link in descriptions. Hope you like it. This is a very important topic for all examination and interviews like ISRO and UPSC. So here we start. Now first we will see the types of MOS inverter. MOS inverter is nothing but a NOT gate, and there are 3 types. This is simplest type of MOS inverter, in which we will use NMOS. This is NMOS, and we will use a resistance RD. This resistance RD is called passive resistance. This is a first type of NMOS, first type of MOS inverter. And improvement of first type is we will use active load. This is called active load. This is a second type of inverter. This is a MOS inverter with saturated NMOS. It is called active load. And we will just replace the RD with active load. Why we will replace, and what are the advantage, disadvantage? We will see it in a next part of this video. And improvement of second type is third type. This is third type. It is called CMOS. आप सभी जानते हैं. This is a CMOS. यहाँ पर active load is replaced by PMOS. P type channel MOSFET. अब देखिए यहाँ पर इन सभी में कॉमन है. This is a NMOS. It is a NMOS and it is a NMOS. Means all lower MOSFET are NMOS, N channel MOSFET. This is a common in all type of MOSFET. बट देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ चेंज है RD, एक्टिव लोड और PMOS का. तो नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, एक्टिव लोड एंड PMOS. Before starting, we will first see the characteristic of ideal inverter, ideal NOT gate. देखिए, this is a switch. And it is an ideal switch. You know that in ideal switch there are 2 states, on state and off state. First, if input, this is a first case, this is a case 1. When input is low, switch is open circuit, so output will be high and current will be 0. So in this state input is low, so this is a area where it is a input and it is a output. This curve is called voltage transfer characteristic, VTC. This is a graph between output voltage and इनपुट वोल्टेज. तो देखिए फर्स्ट केस में जब इनपुट लो रहेगा तो ये रहेगा ओपन सर्किट. ओपन सर्किट रहेगा तो करंट कितना रहेगा, 0 रहेगा. ID इक्वल टू 0 रहेगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं रहेगा. तो आउटपुट कितना होगा, इट इज इक्वल टू पावर सप्लाई, इट इज इक्वल टू VDD. तो इन दिस केस this is called VOH, high voltage. It is equal to VDD. And this is a second case. This is a case 2.
दिस इज केस 2 व्हेन इनपुट इज हाई। जब हम इनपुट को हाई रखेंगे तो स्विच क्लोज रहेगा और आउटपुट होगा लो और करंट रहेगा हाई। देखिए इस केस में इनपुट यदि हाई रहा तो ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, शॉर्ट सर्किट रहेगा तो ये ग्राउंड पर जीरो वोल्टेज, आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आउटपुट जीरो हो जाएगा, वो करंट रहेगा मैक्सिमम और आउटपुट रहेगा जीरो। तो इन दिस केस व्हेन इनपुट इज हाई this is output is 0, this is VOL. So this is a ideal inverter. Before starting we will see the ideal conditions. देखिए आइडियल इन्वर्टर का करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए। फर्स्ट वी विल सी द वोल्टेज लेवल शुड बी, देखिए आउटपुट वोल्टेज दो तरह के हो सकते हैं, हाई आउटपुट वोल्टेज शुड बी VDD एंड लो आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इज अ आइडियल कंडीशन। और इनपुट, यहां दो इनपुट हैं, दिस इज VIL एंड VIH। VIL एंड VIH शुड बी इन मिडिल ऑफ इनपुट, इट शुड बी इक्वल टू VDD अपॉन 2। ये चार पैरामीटर्स हमको यूज आएंगे नॉइस मार्जिन निकालने के लिए। तो यदि ये कंडीशन रहेगी तो नॉइस मार्जिन रहेगा हाईएस्ट, सिर्फ आइडियल कंडीशन में। नाउ वी विल सी द सेकंड पॉइंट। देखिए अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस आर की। रेजिस्टेंस आर शुड बी लार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। देखिए ये कंडीशन देखिए, इस कंडीशन में ये स्विच क्लोज है तो यहाँ कितना रहेगा आउटपुट, जीरो। तो इस केस में करंट आएगा ID। इस केस में रेजिस्टेंस हाई क्यों होना चाहिए वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। करंट ID शुड बी लो टू मेक पावर कंजप्शन लो। अब देखिए पावर कंजप्शन डिपेंड करता है VDD पर और ID पर। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं जो पावर डिसिपेशन है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, ड्रेन करंट के प्रोपोर्शनल है। तो ड्रेन करंट को हमको कम से कम रखना है और ID क्या होगा इस पॉइंट से, VDD माइनस V आउटपुट अपॉन RD। ठीक है, अब देखिए VDD जब आउटपुट वोल्टेज जब VDD के इक्वल होगा तो करंट कितना होगा इस केस में, केस 1 व्हेन V आउटपुट इक्वल टू VDD तो करंट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इस केस में पावर डिसिपेशन कितना होगा, जीरो होगा, नो इशू। तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड केस में प्रॉब्लम है। सेकंड केस में देखिए व्हेन V आउटपुट इक्वल टू जीरो तो ID कितना आएगा, VDD अपॉन RD। इस केस में पावर डिसिपेशन सिग्निफिकेंट रहेगा। तो सिग्निफिकेंट रहेगा तो इस पावर कंजप्शन किस पर डिपेंड करता है, ID पर डिपेंड करता है। तो ID को हमें कम करना है तो हमें क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाना होगा। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि what should be the value of resistance should be large। ठीक है, even this is a ideal inverter, तभी भी इस इन्वर्टर में पावर कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब आउटपुट जीरो है तो उस केस में ID का सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इट इज नॉट ए जीरो। तो इस ID के वैल्यू को हमको कम करना है, तो कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो दिस इज सेकंड पॉइंट। तो रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ MOS इन्वर्टर। Now first we will see the MOS inverter with passive resistance. This is a type 1, first type of MOS inverter। यहाँ रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ RD is called passive resistance। पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, विच कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, एक बार हमने सर्किट में लगाया RD तो वी कैन नॉट चेंज द RD।
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ MOSFET is NMOS. This is simplest type of MOS inverter. So we will here we will use NMOS. ठीक है, तो you know that N channel MOSFET में there are three reasons. तीन रीजन कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट मीन्स ऐसा स्टेट जिसमें NMOS ऑफ रहेगा। ऑफ कब रहेगा? यदि हम इनपुट इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। देखिए यहाँ इनपुट क्या है? इनपुट इज नथिंग बट ए VGS। इफ VGS इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो नो चैनल, देयर इज ए नो चैनल इंड्यूस। यदि चैनल ही इंड्यूस नहीं होगा तो करंट कितना रहेगा? ID इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा इस स्टेट में। ID 0 रहेगा तो आउटपुट ID 0 रहेगा तो इसे हम बोलते हैं ऑफ स्टेट। हम इनको सभी को डिटेल्स में देखेंगे आगे, अभी जस्ट समरी देख रहे हैं। अब सेकेंड इज सैचुरेशन। सैचुरेशन NMOS का कब आएगा? जब VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। यदि ये कंडीशन है तो NMOS रहेगा सैचुरेशन रीजन में। तीसरी कंडीशन होती है ट्रायोड। ट्रायोड रीजन को हम लीनियर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट ऑफ सैचुरेशन रीजन। यदि VDS इज लेस देन VGS माइनस VT रहेगा तो ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा लीनियर रीजन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू these three reasons we will see the diagram. देखिए this is called VTC. VTC means voltage transfer characteristic. This is a graph between input and output voltage. अब देखिए दिस इज नॉट ए आइडियल। आप देख सकते हैं हमने आइडियल केस डिस्कस किया था। दिस इज नॉट ए आइडियल केस। आइडियल केस कैसा होना चाहिए था? एग्जैक्ट शार्प चेंज आना चाहिए था। बस ये शार्प है क्या? नहीं है ये शार्प। क्यों शार्प नहीं है? नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाई इट इज नॉट ए बिहेविंग एज ए आइडियल इन्वर्टर। अब देखिए दिस इज कॉल्ड ऑफ स्टेट। ऑफ स्टेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इनपुट इज लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। ये रीजन, इनपुट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो ये रहेगा ऑफ स्टेट। सेकंड इज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कब आएगा? देखिए ये एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन ये लाइन है VDS इक्वल टू VGS माइनस VT, ठीक है। तो यदि VG इस लाइन के अपर वाला पार्ट सैचुरेशन रीजन रहेगा और जो लोअर पार्ट है वो रहेगा ट्रायोड रीजन। आपको बताया था कि सैचुरेशन रीजन कब होता है? जब VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT। तो ये कब रहेगा? ये अपर पार्ट, ये अपर पार्ट रहेगा सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और ये लोअर पार्ट रहेगा ट्रायोड रीजन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट मोड इज ऑफ मोड। दिस इज ए फर्स्ट मोड। अब देखिए इफ इनपुट vi is nothing but a VGS. If input is less than threshold voltage तो NMOS will be in off state। यदि ऑफ स्टेट में रहेगा, ठीक है, तो इस सभी के लिए ऑफ स्टेट रहेगा। अब ऑफ स्टेट रहेगा तो ये क्या रहेगा? ये ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट में करंट कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। करंट 0 रहा तो RD के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं रहेगा तो आउटपुट कितना हुआ? आउटपुट रहेगा हाई वोल्टेज VOH इज इक्वल टू VDD। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो VOH इज विल बी इक्वल टू VDD। हाई VDD इज पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई, ठीक है।
ये सबसे इजीएस्ट मोड है, तो आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट मोड, सैचुरेशन मोड. अब देखिए ये है सैचुरेशन मोड. अब सैचुरेशन मोड कब होगा? आउटपुट was higher near input just above the threshold voltage. अब देखिए हम यहाँ पर थे at B point, आउटपुट was high, तो VGS क्या था? हाई था, और VDS कितना था? हाई था, और VGS क्या था? लो था. तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये रीजन रहेगा सैचुरेशन रीजन. तो इन सभी रीजन में, इन सभी पॉइंट्स पर, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स पर एनमॉस रहेगा सैचुरेशन रीजन में. जिससे ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? यू नो द लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो उससे होगा लाइन का इक्वेशन VDS इक्वल टू VGS माइनस VT. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो V आउटपुट इक्वल टू V इनपुट माइनस VT, बिकॉज V आउटपुट इज VDS एंड V इनपुट इज VGS. ठीक है, तो ये लाइन का इक्वेशन है. तो इसके जो भी अबव वाला पार्ट आएगा वो सैचुरेशन का पार्ट आएगा, और बिलो पार्ट आएगा वो ट्रायोड रीजन का पार्ट आएगा. ठीक है, तो नाउ एनमॉस विल बी इन सैचुरेशन. तो इन सभी पॉइंट्स के लिए एनमॉस किस में रहेगा? सैचुरेशन में रहेगा. ठीक है, दिस इज ए सेकेंड रीजन. अब देखिए ये शार्प नहीं है. आईडी करंट आरडी में जा रहा है, तो आईडी कितना होगा? VDD माइनस V आउटपुट अपॉन RD. दिस इज इक्वेशन 1. और सैचुरेशन रीजन में आप करंट का इक्वेशन जानते हो. इन सैचुरेशन रीजन करंट का इक्वेशन है रहेगा म्यू COX W अपॉन L अपॉन 2 VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज ए इक्वेशन 2. तो हमें इनपुट और आउटपुट में रिलेशन चाहिए, तो हम इन्हें इक्वेट कर देंगे. लेट्स अज्यूम इट इज ए कांस्टेंट K. तो ये रहेगा VDD माइनस V आउटपुट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K VI माइनस VT का होल स्क्वायर. ठीक है, VGS इज नथिंग बट ए VI, तो हमने इसे इससे रिप्लेस करिए. बाकी सभी कांस्टेंट को हमने K से रिप्लेस कर दिया. यू कैन सी दैट दिस इज ए इक्वेशन ऑफ सम पैराबोला. ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व है. जब भी सैचुरेशन में आएगा वो एग्जैक्ट लीनियर नहीं होगा. दिस इज समथिंग लाइक ए पैराबोला. ठीक, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन आइडियल केस. आइडियल केस में जो शार्प चेंज आना था, ये शार्प चेंज नहीं है, इट इज ए पैराबोला. नाउ वी विल डिस्कस थर्ड रीजन, ट्रायोड रीजन. अब देखिए ट्रायोड रीजन, आप जानते हैं कि VDS या V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट माइनस VT का लाइन है. यदि ये इससे कम रहा तो ये सभी रीजन क्या रहेगा? ट्रायोड रीजन में रहेगा. तो ये जो सभी पॉइंट्स हैं, C पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट, ऑल पॉइंट विल बी इन ट्रायोड रीजन. ठीक है, तो इफ इनपुट इज इन दिस रेंज, if input is in higher range, आप ऐसे भी बोल सकते हो if input is high, यदि इनपुट हाई रहा तो कौन सा रीजन होगा? ट्रायोड रीजन होगा, या फिर लीनियर रीजन भी आप बोल सकते हो. ठीक है, इन ट्रायोड रीजन यू नो द इक्वेशन ऑफ करंट. ID इक्वल टू रहेगा म्यू COX W अपॉन L VGS माइनस VT इंटू VDS. ठीक है, देखिए हमें इस रीजन में आउटपुट निकालना है VOL. आइडियल केस में 0 होता था, पर इन दिस केस इट विल नॉट बी 0. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज द केस. अब ट्रायोड केस में, ट्रायोड रीजन में
एक रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है, आउटपुट ड्रेन रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है. यू नो द ड्रेन रेजिस्टेंस वैल्यू. When VGS is further increased, the NMOS shift towards triode region or output voltage decreases. ठीक है. तो you know the drain resistance. Drain resistance is del VDS upon del ID. ठीक है. VGS is equal to VDD. तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन से RDS निकालोगे तो वो आएगा, आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू VDS और उसे अपोजिट करोगे तो 1/k VDD माइनस VT. तो यहाँ हम इट इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है RDS. तो ट्रायोड रीजन में ड्रेन रेजिस्टेंस क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा. तो दिस इज इक्विवेलेंट डायग्राम इन ट्रायोड रीजन. तो यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस पैसिव रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RD एंड ड्रेन रेजिस्टेंस इज स्मॉल RDSN. ठीक है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन टू आउटपुट वोल्टेज. तो आउटपुट वोल्टेज आप वोल्टेज डिवाइड रूल से निकाल सकते हो. आउटपुट वोल्टेज VOL, लो आउटपुट वोल्टेज VOL इज इक्वल टू VDD RDS अपॉन RD प्लस RDS. ठीक है. अब you know that it is not equal to 0. ये 0 नहीं रहेगा. ठीक है. इट इज ए फाइनाइट वैल्यू. ठीक है. यही डिसएडवांटेज है इन्वर्टर का. जब हम पैसिव रेजिस्टेंस यूज लेते हैं तो ये 0 नहीं होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा. तो हमें क्या करना है, RD का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखना है. यदि हम ड्रेन रेजिस्टेंस जो पैसिव रेजिस्टेंस है ये RD, इसका वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो ये आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, ये 0 को टच करेगा. इट विल टेंड टू 0. सो व्हाट इज प्रॉब्लम हियर, VOL इज नॉट इक्वल टू 0. ये एक प्रॉब्लम है. इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अभी हम आगे देखते हैं. ठीक है. हियर इज अ डिसएडवांटेज. इट इज ए इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू. काफ़ी फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए. गेट इंटरव्यूज या फिर इसरो या फिर अदर एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मॉस इन्वर्टर विद पैसिव रेजिस्टेंस. देखिए, पावर कंज्यूम होता है, वो पावर कंज्यूमशन मेन किस रीजन में होता है, ट्रायोड रीजन में होता है. द इन्वर्टर dissipates power only when the output is low, in which case the current drawn from the supply is this. देखिए IDD कितना है, IDD होता है VDD माइनस V आउटपुट अपॉन RD. ठीक है. यदि V आउटपुट इज इक्वल टू VDD रहा तो वैसे भी उस केस में IDD कितना होगा, 0 ही होगा. तो उस केस में पावर डिसिपेशन कितना होगा, 0 होगा. तो फर्स्ट केस में जब आउटपुट हाई है तो उस केस में पावर डिसिपेशन होगा ही नहीं. इसीलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है. तो पावर कंज्यूम किस रीजन में होता है, सिर्फ ट्रायोड रीजन में ही होता है. ठीक है. तो इस केस में पावर डिसिपेशन होगा. तो पावर डिसिपेशन कितना होगा, PD इक्वल टू VDD इंटू IDD. यदि हम एवरेज की बात करें तो हम इसे हाफ ले लेंगे, क्योंकि केस 1 में पावर डिसिपेशन 0 रहता है और केस 2 में पावर डिसिपेशन VDD इंटू ID रहेगा. तो ऑन एवरेज ये आएगा 60 माइक्रो वॉट. ये एक गेट का है, दिस इज फॉर 1 गेट. और आप जानते हैं एक IC पे हजारों गेट होते हैं, लाखों गेट होते हैं. तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट पावर होगी. यदि मैं अज्यूम करूँ एक IC पे 10⁻6 गेट्स हैं तो वो कितना कंज्यूम करेगी, 60 वॉट अप्रोक्सीमेट. तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ये बहुत ज़्यादा पावर है. इट शुड बी 0 अप्रोक्सीमेट, इट शुड बी इन नैनो वॉट. तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि पावर डिसिपेशन ज़्यादा है. ठीक है. पावर डिसिपेशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ID का वैल्यू सिग्निफिकेंट है. ID का वैल्यू सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि RD यहाँ इनफाइनाइट नहीं है. RD का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है. इसलिए
पावर डिसिपेशन भी कोई ना कोई आएगा और वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू मेक पावर डिसिपेशन लो आर डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए आर डी का वैल्यू, तो आर डी का वैल्यू आप इंक्रीज कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, एक लिमिटेशन है। तो ये सेकंड क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में कि हम आर डी का वैल्यू हम ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि इफ़ वी इंक्रीज द आर डी द मॉसफेट शिफ्ट टुवर्ड्स ट्रायोड रीजन। ये कैसे होगा, ये देखिए, अब लोड लाइन का इक्वेशन है आई डी इक्वल टू वी डी डी माइनस वी नॉट अपॉन आर डी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वी डी डी इक्वल टू आई डी आर डी प्लस वी नॉट। ठीक है, अब देखिए वी डी डी तो कांस्टेंट है, तो आपने यदि आर डी के वैल्यू को इंक्रीज किया, ज़्यादा इंक्रीज किया, तो आउटपुट को कम होना होगा, तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा तो कहाँ किस रीजन में चला जाएगा, वो ट्रायोड रीजन में चला जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। तो आर डी का वैल्यू हम ज़्यादा भी नहीं रख सकते, एक लिमिटेशन है। हम अप्रोक्सीमेट टिपिकल वैल्यू कितनी है 25 किलो ओम, 25 किलो ओम टिपिकल वैल्यू है, टिपिकल वैल्यू है। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है 25 किलो ओम तक रखने से। इफ़ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई तो आउटपुट को कम होना होगा, इफ आउटपुट को कम होना होगा तो दिस इज ए कर्व वी डी एस आई डी। तो यदि आर डी को हम आर डी को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज कितना जाएगा, डाउन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये क्या, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक तरह से सैचुरेशन से ये शिफ्ट हो रहा है ट्रायोड रीजन में। तो यहाँ एक प्रॉब्लम है। और आप जानते हो पावर कंजप्शन मेनली कहाँ होता है, ट्रायोड रीजन में होता है, तो पावर कंजप्शन बढ़ सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो हम आर डी का वैल्यू बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, दिस इज ए प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, this is a noise margin. First we can also discuss the noise margin. Let's assume टिपिकल वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं कि VDD है 1.8 वोल्ट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। तो इस केसेस में जो आईसी हमें मार्केट में मिलता है उस आईसी के, इसी के स्टैंडर्ड आईसी के रिजल्ट्स ही रहेंगे। आप जानते हो VOH क्या था, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना था, VDD के इक्वल था 1.8 ही आएगा। ठीक है, आपने VOL का फॉर्मूला देखा था, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.12 वोल्ट। ठीक है, और VIL और VIH कितना होना चाहिए था, अप्रोक्सीमेट VDD इक्वल टू अपॉन 2 होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इनकी भी एक डिफरेंट वैल्यूज है। नॉइस मार्जिन का फॉर्मूला जानते हैं। नॉइस मार्जिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉइस मार्जिन, लो नॉइस मार्जिन एंड हाई नॉइस मार्जिन। लो नॉइस मार्जिन इज VIL माइनस VOL, तो ये रहेगा अप्रोक्सीमेट 0.47, एंड हाई नॉइस मार्जिन इज VOH माइनस VIH, इट इज 0.74। तो नॉइस मार्जिन कितना रहेगा, नॉइस मार्जिन इन दोनों का मिनिमम रहेगा, तो मिनिमम कितना रहेगा 0.47 वोल्ट। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये काफ़ी लो वैल्यू है, हम इसे हाई वैल्यू चाहते थे। तो आइडियली अब देखिए आइडियल केस में क्या होना चाहिए था, VOL शुड बी जीरो। यदि VOL जीरो रहता तो नॉइस मार्जिन इंक्रीज होता। ठीक है, या फिर दूसरा आइडियल केस VOH को हम क्या करते हैं VDD, तो VDD तो है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। VIL और VIH कितना होना चाहिए था, VDD अपॉन 2 होना चाहिए था। यदि ये VIH VDD अपॉन 2 होता तो ये आइडियल वैल्यू क्या होनी थी, 1.8 अपॉन 2, 0.9 वोल्ट होता आइडियल केस में। ठीक है, तो इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आइडियल केस। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ इन्वर्टर, कि हमने
जो रेजिस्टेंस आर डी था उसको रिप्लेस किया एक एनमॉस से, एनमॉस जिसमें ड्रेन और गेट शॉर्टेड है। देखिए ये शॉर्टेड है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या हुआ वो अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ दिस सैचुरेटेड एनमॉस। देखिए फर्स्ट वी विल कंसीडर द अपर एनमॉस। अपर एनमॉस इज Q2 when gate and drain are shorted it will act as always in saturation mode, ठीक है। ये अपर मॉसफेट हमेशा सैचुरेशन में ही काम करेगा, ऑलवेज सैचुरेशन, ठीक है। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर VGS इक्वल टू VDS है। तो इस केस में ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगा, VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT, ठीक है। यदि VGS और VDS इक्वल हैं तो VDS शुड बी ग्रेटर देन VDS माइनस VT। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ VDS इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। VDS तो हमेशा VDS माइनस VT से ज़्यादा होगा ही। तो यदि हम ड्रेन को और गेट को शॉर्ट करें तो अपर ट्रांजिस्टर हमेशा सैचुरेशन में ही काम करेगा। दिस इज ए फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सैचुरेटेड NMOS वर्क एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। अब देखिए ये सैचुरेशन रीजन है, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, ID कांस्टेंट रहता है। यदि VDS कितना भी आप वेरी करो ID कांस्टेंट रहेगा, तो इट विल एक्ट एज ए करंट सोर्स, ठीक है। और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आइडियल केस में इनफाइनाइट होता है। आप देख सकते हो ना कि स्लोप कितना है, I अपॉन V का स्लोप 0 है, तो V अपॉन I कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस केस में आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियली इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आइडियली इट इज ए इनफाइनाइट, पर यू नो दैट नथिंग इज आइडियल। तो प्रैक्टिकली RD होगा यहाँ पर 100 किलो ओम, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो दिस इज ए 100 किलो ओम, ठीक है। नाउ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग NMOS इज इट रिक्वायर्स लेस एरिया। दिस इज ए एरिया, ये गलत हो गया, दिस इज ए एरिया टू बी फैब्रिकेटेड एज लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए ये NMOS फैब्रिकेट होने के लिए भी एरिया कम लेता है, ठीक है। तो हम सिंपल RD की जगह हम ये NMOS यूज ले रहे हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। तो यू कैन कंसीडर दिस सर्किट एज ए लास्ट सर्किट वेयर RD इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 100 किलो, ठीक है। और भी एडवांटेज है, और भी एडवांटेज क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें भी 3 केसेस है। इनपुट यदि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, सैचुरेशन रीजन और ट्रायोड रीजन, यहाँ पर भी 3 केसेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल कंसीडर द व्हेन इनपुट इज लो। जब इनपुट लो रहेगा, इनपुट लो का मतलब देखिए इनपुट लगा रहे हैं हम NMOS पर, अगेन इनपुट NMOS पर ही लग रहा है Q1 पर। तो इनपुट इफ लो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT1। अब देखिए यहाँ पर 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज आएंगे, VT2 अपर NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VT1 लोअर NMOS का थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये यदि इनपुट हम लेंगे Vi इज लेस देन VT1 तो Q1 क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा, बिकॉज देर इज ए नो चैनल इंड्यूस्ड। तो उस केस में आउटपुट कितना आएगा, V आउटपुट होगा VDD माइनस VT1। अब देखिए यदि हम ये ऑफ करते हैं, it is a VTC, it is a VTC voltage transfer characteristic।
हम इसे आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। इट इज ए ऑफ स्टेट। अब देखिए यदि ऑफ रहेगा उस केस में आपको पता है कि हमेशा सैचुरेशन में, इट इज इन सैचुरेशन, आपको बताया था एनमॉस, अपर एनमॉस का कहाँ रहेगा, हमेशा सैचुरेशन में रहेगा। तो उसके अक्रॉस मिनिमम वोल्टेज VT2 तो रहेगा ही। ये क्यों रहेगा? आप देखिए, आपने इनपुट करेक्टरिस्टिक देखी है, मेरे लास्ट वीडियोस देखिए आप मॉसफेट पर, उसमें डिटेल में बताया गया है कि I और VGS का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, जब तक इनपुट ये, जब VDS इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और सैचुरेशन में, तो सैचुरेशन रीजन के अंदर VDS मिनिमम VT तो रहेगा ही। ठीक है, VT तो इस केस में करंट कितना है, 0 है। आपको पता है कि इट इज अ ओपन सर्किट, तो करंट कितना है, 0 है। तो इफ करंट इज 0 देन व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस अपर एनमॉस इज VT। तो VGS इक्वल टू VDS होता है, आपको पता है। तो उस केस में ये कितना है, VT, और VT क्या है, VT2। तो अपर Q2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, VT2 होगा इस केस में। तो आउटपुट वोल्टेज, V आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, ये रहेगा VDD माइनस VT2। ठीक है, now we will discuss next part. Now we will discuss the second reason. If input is just increased by threshold voltage, increased above threshold voltage, तो ये रहेगा saturation region में। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस किया था। इट वॉज ए ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट से जैसे ही हमने थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज किया, थोड़ा सा इनपुट इंक्रीज किया, दिस इज इनपुट, इनपुट किससे इंक्रीज किया, VT1 से ज़्यादा थोड़ा हमने इंक्रीज किया, तो ये एनमॉस, लोअर एनमॉस चला जाएगा सैचुरेशन रीजन में। दिस इज ए सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT1, तो ये रहेगा सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो लास्ट केस था, मॉस इन्वर्टर विद पैसिव रेजिस्टेंस और मॉस इन्वर्टर विद एनमॉस, यहाँ एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस है इसका स्लोप। इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज, बट दिस इज सम डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इट कैन बी ओनली आस्क्ड इन इसरो। तो जो ये स्लोप रहेगा वो लीनियर स्लोप है। सैचुरेशन रीजन के अंदर जो स्लोप है वो लीनियर स्लोप है। वो कैसे आया, वो आप ड्राइव कर सकते हो। देखिए, अपर एनमॉस सैचुरेशन में रहेगा, तो यहाँ पर करंट रहेगा ID2, और लोअर एनमॉस को भी हमने सैचुरेशन में ही माना है, VD1। तो ID2 कितना है, सम कांस्टेंट K, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, दिस इज ए फॉर्मूला। यू नो दैट कि यहाँ पर गेट ड्रेन और गेट शॉर्टेड है, तो ये VGS कितना होगा, VDS के इक्वल ही होगा, VDS के इक्वल होगा। VDS क्या है, VDD माइनस V आउटपुट। ठीक है, माइनस VT2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। और ID1 क्या है, लोअर एनमॉस के अंदर करंट, इट विल बी ऑल्सो इन सैचुरेशन, तो ये रहेगा VGS माइनस VT1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर VGS क्या है, VI के इक्वल ही है, इनपुट वोल्टेज। तो हम इन दोनों की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। यू नो दैट कि ID1 इक्वल टू ID2 है, तो इस केस में VDD माइनस V आउटपुट माइनस VT2 इक्वल टू कितना होगा, VI माइनस VT1। तो आप देख सकते हो दिस इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे VT2 VT1 ये तो सभी कांस्टेंट है, तो V आउटपुट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C माइनस VI। ठीक है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कितना रहेगा, लीनियर रहेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा। ठीक है,
तो सैचुरेशन रीजन में स्लोप रहेगा लीनियर। दिस इज सेकेंड डिफरेंस बिटवीन MOS inverter with passive resistance and MOS inverter with NMOS. Now we will see the triode region. देखिए ट्रायोड रीजन कौन सा रहेगा, जहां पे इट वाज ऑफ स्टेट, ऑफ के बाद आया सैचुरेशन। यदि हमने इनपुट को और ज़्यादा इंक्रीज किया तो ये इनपुट को इंक्रीज करने से एनमॉस कहाँ चला जाएगा, ट्रायोड रीजन के अंदर चला जाएगा। तो ये सभी सी पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स किस पर हैं, ट्रायोड रीजन के अंदर है। और ट्रायोड रीजन में आप जानते हो कि इन ट्रायोड रीजन में करंट रहेगा ID इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट VGS माइनस VT इंटू VDS। तो यहाँ पे एक ड्रेन रेजिस्टेंस आएगा और ये कांस्टेंट रहेगा और फाइनाइट वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा 1 अपॉन सम कांस्टेंट के VDD माइनस VT, ठीक है। आपको बताया था कि सैचुरेटेड NMOS इज नथिंग बट ए हाई रेजिस्टेंस, तो RD इक्वल टू 100K था लास्ट केस में, और जो लोअर NMOS है उसे हमने RDS से रिप्लेस कर दिया। RDS ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ NMOS, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट है आउटपुट वोल्टेज में VOL। तो VOL कितना आया, VDD RDS अपॉन RD प्लस RDS। अब देखिए ये केस सेम है बिल्कुल लास्ट इन MOS इन्वर्टर विद पैसिव रेजिस्टेंस, उससे बिल्कुल सेम केस है। ओनली डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RD। वहाँ हमने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RD 25 किलो ओम लिया था, यहाँ इस केस में हम RD का वैल्यू ले रहे हैं 100 किलो ओम। अब देखिए 100 किलो ओम रहेगा तो क्या रहेगा, VOL डाउन जाएगा, और VOL डाउन जीरो के जितना करीब होगा, जितना ये RD ज़्यादा होगा उतना ही VOL कम होगा, इट विल टेंस टू जीरो, उतना ही पावर कम कंज्यूम होगा, ठीक है। दिस इज ए एडवांटेज ऑफ MOS इन्वर्टर विद NMOS। तो थोड़ा हम समरी भी देख सकते हैं, इसे दूसरी तरीके से भी हम समझ सकते हैं। देखिए ये इट इज ए करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक ऑफ Q1, ठीक है। आउटपुट VDS और करंट में ग्राफ आप देख सकते हो कि यहाँ से हम यदि VGS का वैल्यू बढ़ाया, VGS इज नथिंग बट ए इनपुट, तो यदि हमने इनपुट का वैल्यू बढ़ाया तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, होता जाएगा, ये कर्व ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इट इज ए कर्व ऑफ I वर्सेस VGS। यदि हम DC लोड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, अब देखिए DC लोड लाइन क्या है, VDD माइनस V आउटपुट अपॉन RD। तो ये DC लोड लाइन है, इट इज ए DC लोड लाइन। अब देखिए DC लोड लाइन का स्लोप कितना किस पर डिपेंड करता है, RD पर डिपेंड करता है। तो स्लोप रहेगा 1 अपॉन RD, तो स्लोप रहेगा 1 अपॉन RD। तो RD यदि हाई है तो स्लोप कितना होगा, कम होगा। तो इसका स्लोप आप देख सकते हो कम है, ठीक है। दिस इज ए रेजिस्टेंस RD इक्वल टू 100K, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने इंक्रीज करते हैं तो इसका स्लोप कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से DC रेजिस्टेंस आ सकता है, लोड लाइन आ सकता है, इसका स्लोप चेंज हो सकता है यदि हम RD का वैल्यू चेंज करें तो, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए जब इनपुट Vi इज लेस देन VT1 था तो वो ऑफ स्टेट था, ऑफ स्टेट था क्यों, क्योंकि VGS का वैल्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम था, तो कोई करंट नहीं आएगा, तो करंट कितना देगा, जीरो। तो AB पॉइंट, ये AB पॉइंट है, तो ये AB पॉइंट पर जब इनपुट VT1 से कम है तो आउटपुट कितना होगा, हाई होगा VOH के इक्वल। तो ठीक है, तो ये हाई है, तो ये आउटपुट है V आउटपुट, इट इज ए हाई वैल्यू, ठीक है। यहां प्रॉब्लम नहीं है आपको। जैसे ही हमने
इनपुट को इंक्रीज किया, तो इनपुट को इंक्रीज करने से कहाँ चला जाएगा, वो धीरे धीरे सैचुरेशन की साइड शिफ्ट होगा। तो ये सी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, दिस इज अ सी पॉइंट। तो ये कहाँ शिफ्ट हो गया, सैचुरेशन में शिफ्ट हो गया। देखिए पहले तो ये ऑफ था, फिर वहां से सैचुरेशन में शिफ्ट हो गया, दिस इज सैचुरेशन रीजन। तो ये सैचुरेशन रीजन रहेगा, सैचुरेशन, ठीक है। यदि हम इनपुट को और ज़्यादा इंक्रीज करें तो आउटपुट डिक्रीज होगा, बिकॉज ये इन्वर्टर है, तो ये आउटपुट डिक्रीज होगा, तो ये अब डी पॉइंट पे आ गए, ये डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट ये रहेगा, डी पॉइंट में एनमॉस कहाँ है, ट्रायोड रीजन में। तो आप ग्राफ से देख सकते हो ये ट्रायोड रीजन ही तो है, ठीक है। तो आप इनपुट को इंक्रीज कर रहे हो, तो इन्वर्टर में इनपुट को इंक्रीज करने से क्या होता है, आउटपुट डिक्रीज होता है, तो आउटपुट पीछे की साइड चला जाएगा। तो ये बी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लोड लाइन से, ये ऑफ स्टेट है, ऑफ स्टेट से वो कहाँ गया, सैचुरेशन में गया, दिस इज सैचुरेशन, और सैचुरेशन के बाद कहाँ गया, वो ट्रायोड में गया, ठीक है। अब देखिए, और स्लोप किस पर डिपेंड करता है, आर डी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा, आर डी जितना ज़्यादा होगा, स्लोप उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये, तो इस केस में जितना ज़्यादा जितना कम स्लोप होगा, उतना ही ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कम होगी। हम ऐसे बोल सकते हैं, जितना स्लोप कम होगा उतना ही बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, वीजीएस ही तो है, वीजीएस क्या है, वी आई है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। अब समझे आप, ये डिस्टेंस कम है, यही तो आइडियल आइडियल केस था। आइडियल केस में ये जो एरिया है इट शुड बी मिनिमम, जैसे ही ऑफ ऑन हो, जैसे ही ऑफ हो, ऑफ के बाद ठीक जस्ट बाद शार्प चेंज आना चाहिए, तो ये इट इज अप्रोक्सीमेट टू शार्प चेंज व्हेन वी कंपेयर इट टू पैसिव रेजिस्टेंस इन्वर्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से शार्प चेंज आता है, ठीक है। तो आप समरी लिख सकते हैं, समरी क्या है, जब रेजिस्टेंस आर डी जितना ज़्यादा होगा तो ये स्लोप रहेगा, ये शार्प रहेगा, शार्प डिक्रीज, ठीक है, शार्प डिक्रीज रहेगा, यही तो हम चाहते थे। नाउ वी विल सी द सम पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक यदि हम कंपेयर करें लास्ट केस से, तो वी आउटपुट इज नॉट इक्वल टू वी डी डी, यहाँ वी डी डी के इक्वल नहीं है, ये वी डी डी माइनस वी टी टू को इक्वल है, ठीक है। एंड शार्पनेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वी टी सी विल बी लीनियर, दिस इज ए लीनियर। तो वी ओ एच कितना रहेगा, वी डी डी माइनस सम वी टी टू रहेगा, वी डी डी कितना था 1.8 माइनस 0.5, इट इज 1.3 वोल्ट। और आपको पता है सेकंड हम बात करें वी ओ एल की, लो आउटपुट की, तो लो आउटपुट कितना रहेगा, आर डी का वैल्यू ज़्यादा था ना, तो ये वी ओ एल का वैल्यू बहुत कम रहेगा, तो यही इसका एडवांटेज है, ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट केस से कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पर वी ओ एल 0.12 था, यहाँ पर 0.04 वोल्टेज है, ठीक है। और वी आई एल और वी एम, तो दिस इज ए नॉइस मार्जिन 0.46 और 0.55। नॉइस मार्जिन में तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बट हम कह सकते हैं कि पावर डिसिपेशन में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। पावर डिसिपेशन इज स्टिल हाई, हाई तो है, बट इट इज लेस देन इन्वर्टर विद पैसिव रेजिस्टेंस। यदि हम कंपेयर करें पैसिव रेजिस्टेंस से, तो वो उससे कम है, ठीक है। तो वहाँ पर लास्ट केस में ये अप्रोक्सीमेट 60 माइक्रोवोल्ट था, अब ये कम रह कितना रह गया, अप्रोक्सीमेट 42 माइक्रोवोल्ट रह गया, ठीक है। तो इट इज़ ए सिग्निफिकेंट चेंज।
Now we will see the summary. In this video, we have studied two type of MOS inverter. MOS inverter with passive resistance, यहाँ पर resistance RD passive है, और MOS inverter with saturated NMOS. It is a saturated NMOS. ठीक है. It is also called active load. थर्ड टाइप होगा CMOS. इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए. तो वी विल सी CMOS इन नेक्स्ट वीडियो. आप डिफरेंस देख सकते हो. अब इसमें से अच्छा कौन सा रहेगा? आप तीनों का VTC देख सकते हो, वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक. इसमें आइडियल वो कौन सा अप्रोच कर रहा है? CMOS. CMOS इज अप्रोचिंग टू आइडियल, तो सबसे अच्छा रहेगा CMOS. ठीक है. CMOS से यदि हम कंपेयर करें पैसिव रेजिस्टेंस से, तो पैसिव रेजिस्टेंस से थोड़ा अच्छा रहेगा NMOS, सैचुरेटेड NMOS वाला केस, या एक्टिव लोड वाला केस भी कह सकते हो. क्यों? क्योंकि इसमें जो स्लोप है ये शार्प चेंज आ रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे चेंज आ रहा है. तो शार्प चेंज आ रहा है, तो ये इट इज अप्रोचिंग आइडियल केस. ठीक है. दूसरा एडवांटेज क्या था NMOS का यूज लेने का? जो VOL है वो VOL है 0.04 वोल्टेज के आसपास था. यहाँ पे VOL 0.12 वोल्ट के आसपास था. ठीक है. इससे क्या होता है? पावर डिसिपेशन इसमें अप्रोक्सीमेट 60 माइक्रोवाट आया था. सेकंड केस में पावर डिसिपेशन अप्रोक्सीमेट 47 माइक्रोवाट आया था. दिस इज ए डिफरेंस. Okay, thank you. I hope you like the video. So please subscribe my channel. Write down in comment section, and please subscribe my channel to get latest update. Thank you.